Hello class, in the continuation from the last lecture, let us start with numericals from Coulomb's law. There are few particular type of numericals we are going to discuss here in that lecture 2, starting with a very good question, that is, when a charge divides into two parts such that maximum force is acting between them. So how you will divide these two charges? आइए देखते हैं। मान लीजिए अपने पास एक Q चार्ज है और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉल q एंड डेफिनेटली द सेकंड वन विल बी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. So what will be the force acting between the two charges? That force will be equal to K small q capital Q minus a small q upon r square. R is distance between them. That can be written as Q K by r square small q capital Q minus small q square. Now because we have to calculate charge when force is maximum. Now for maximum force dF by dq will be equal to 0. What does it mean? How will you differentiate that? If you differentiate this function f with respect to q, you will get q by r square, and that small q capital Q becomes capital Q only because d we are differentiating with respect to q. तो यहां पे ये 1 हो जाएगा, so q बच रहा है, minus differentiation of q square will be equal to 2q and will be equal to 0. Because for maximum force that dF by dq should be equal to 0. This implies that capital Q minus 2q is equal to 0, and finally that q will be equal to capital Q by 2. So how you will divide? You will divide this charge equally to get maximum force. Next very important question. You know, force is a vector quantity, so we will discuss superposition of forces, principle of superposition of forces. What is it? Suppose you have few charges placed in a coordinate plane xy axis. अगर आपने xy plane में that q1, q2, q3 are placed in such a way that position vector of this q1 is equal to r1, say it is r1. Position vector of this q2 is say r2 vector, and position vector of this r3 q3 is r3 vector. So net force acting on q1 due to other two charges will be, this charge suppose is acting a force on this side, say it is F1 2, force acting on 1 due to second, and due to the second third one on this first, suppose that is F1 3, force acting on 1 due to second. Now इन एक चार्ज पे बाकी दो चार्जेस की वजह से ये दो फोर्सेस लग रहा है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, assuming all having same nature of charges. तो यहां पे हम principle of superposition क्या लिखेंगे? According to principle of superposition, net force acting on one, say F1 is equal to F12 plus F13. Net force acting on one is equal to vector sum of all the forces acting on this charge due to other charges. If you have more than two charges around that q1, then it will be F12, F13, F14 and so on. So that is what? That is principle of superposition. What is the meaning of that F12 or F13? As this is R1, this is R2. So this length will be R. This is R1, this is R2. So this length will be R1, 2.
and this length will be r13, and that will be r12 will be equal to r1 position vector minus r2 position vector. That is another thing, that is a concept of vector. So this is r12, this is r13. So F1 can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught, force acting on 1 due to second, so that will be Q2 Q1 divided by this square of that distance, that is r12 square or r12 cube into r12 vector. What is that? It is a vector form, plus similarly vector form, Coulomb's law in vector form. Similarly, that F13 can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 Q1 upon R13 cube into R13 vector. You can take common 1 upon 4 pi epsilon naught can be common. Q1 can also be taken common in both the expressions. Now here that will be Q2 upon R12 cube into R12 plus Q3 upon R13's cube into R13 this. So this is a form of this is a force, resultant force acting on this charge due to other charges. So this is Coulomb's law in vector form. Let us discuss an example of superposition of forces. There are three charges placed on three corners of an equilateral triangle of side A. You have to calculate net force acting on that capital Q charge due to other two charges. So because all charges are positive, so this will show force along this side, say F1. This is very simple question based on that. We'll discuss more difficult problems than that. Force acting due to this small q charge will be acting on this side, say it is F2. F1 and F2, they are acting at right angle because it is an equilateral triangle and this angle is equal to 60 degree. So F1 is equal to F2 is equal to K small q capital Q upon A square, that is F1 F2, and because they are equal and angle between them is equal to 60 degree, then you have to calculate its vector sum, vector resultant sum. F will be under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60. You know cos 60 is 1 by 2. So that 2 cancel. F1 is equal to F2, then F will be equal to F1 root 3. When you will solve this, place F2 is equal to F1, you will get this relation. Now F1 we all know. So resultant force F will be equal to K small q capital Q upon A square into root 3. And definitely you have to write its direction also because both are equal. So it is directing vertically upward. Direction is also, direction should be written directed vertically upward. In the continuation of superposition of forces, we'll discuss stability. What is stability? If a body which is point mass, if a point mass body and there are many forces F1, F2, F3 are acting on it, then for point mass, if a body is stable, then net force F will be equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4 will be equal to 0. And if you have an extended object, if you have a length, then along with this linear force, torque should be equal to tau 1 plus tau 2, tau 1, tau 2, tau 3
they are torque or moment of force due to individual forces, and total torque will also be zero. Now for stability, if a body is stable, then you have to show total force should be equal to zero and total torque should be equal to zero. We know that there are three type of equilibrium. What kind of? Number one, if you take a body just placed above the surface of a bowl को उल्टा करके यहां पे अगर रख दें, if you displace slightly either right or left, then it will fall. So that is a stable position, that is stable, but it is not in equilibrium, that will not be in equilibrium. So there is a difference between stability and equilibrium. हम लोग इसको अभी डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में भी समझेंगे, लेकिन आप यहां पे समझ सकते हैं कि अगर आपने इस बॉडी को इस उल्टे बॉल के ऊपर स्लाइटली लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस किया, यहां आप इसको बैलेंस कर सकते हैं स्लोली, लेकिन अगर आपने लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस किया देन बॉडी विल मूव. तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और अगर सेम बॉल को उल्टा करके और तब आप यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखिए, एंड इफ यू डिस्प्लेस स्लाइटली आइदर लेफ्ट और राइट, तो व्हाट विल हैपन? अगर आपने लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो वापस वहीं आ जाएगा. तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. और अगर आप एक प्लेन सरफेस पे एक बॉडी रखते हैं, तो यहां रखोगे तो यहां रहेगा, यहां रखोगे तो यहां आ जाएगा, और जहां भी रखोगे वहीं पड़ा रहेगा. दैट विल नॉट मूव एनीवेयर. तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम हैं. हम लोग मैथमेटिकली हम लोग इन चार्जेस में भी इन सबको, इस पूरी मैकेनिक्स को समझेंगे. इसकी जो कंडीशंस थी वो हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया था. हमने आपको जस्ट रिकॉल कर दिया कि क्या होता है इस केस में. फोर्स जीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहां पे क्या होती है. तो अब हम लोग अपने आगे क्वेश्चंस में, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग यहां पे डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी और वेक्टर सम पे देखेंगे कंबाइंड. अब हम यहां पे इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि एक सेटअप है एक चार्जेस का, जिसमें चार चार्जेस Q ईच, दे आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, and you have to calculate number one total force acting on any of the charge. तो चलिए हम इस स्मॉल q वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालते हैं. ये वेक्टर सम हो गया. यहां इस वाले चार्ज पे अगर हम बात करें तो फोर्स कहां कहां से लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ऑन राइट, बिकॉज ऑल हैव सिमिलर चार्जेस. मान लीजिए यहां पे हमने लिखा A B C D, ये चार साइड्स हैं, चार कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के, तो ये लिख दिया हमने FD. दिस इज सपोज FC, एंड ड्यू टू दिस चार्ज दैट विल बी एक्टिंग ऑन दिस साइड, सपोज इट इज FC. This is AB, so this is FB, this is FD, this is FC. फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू अदर थ्री चार्जेस. तो हमने यहां पे FB FC ये वैल्यूज लिख दी. अब आप इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए. तो FD एंड FB दे आर इक्वल. हाउ मच आर दे? Q. Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. एंड व्हाट इज FC? FC विल बी इक्वल टू K small q upon diagonal. If side is A, then diagonal will be R root 2. So square of R root 2 will be 2R square. So that is FC. FC is exactly directing along the diameter, that is
45 degree from this line and 45 from the vertical. यहां पे ये जो फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी एफ बी डी. एफ बी डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी cos 90. तो you can write cos 90 or you can write directly because cos 90 is equal to 1. So you can write this only. So as FB is equal to FD, so it will be FB square root of 2. So that will be under root 2k q square upon r square. That is resultant of two forces FB and FD. They are directing along FC. They are directing along FC. Now, magnitude of FC is this. So, what will be the total amount of force acting on that? F total. This is first part of the problem. Then F total will be FC plus FBC as they are directing along same direction में directed है. तो आप यहां पे इस तरीके से लिखेंगे. अब क्योंकि FC और FBC के बीच में एंगल 0 है तो आप अलजेब्रिक सम भी कर सकते हैं. यहां हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया है. ये कहां से लिखा? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो दिस इंप्लाइज दैट F विल बी इक्वल टू, इनको अलजेब्रिक सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टिंग है. तो FC का मैग्नीट्यूड कितना है? k q स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर एंड FBC इज इक्वल टू रूट 2k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. यू कैन टेक कॉमन, इट इज k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 by 2 plus root 2. That will be your answer. And directing 45 degree from FD. From force FD. So direction should be written. This is first part of the problem. Now in second part you have to discuss what will be the magnitude of charge, what should be the charge placed at center of the square such that net force acting on any of the charge will be equal to 0. या इसको कह सकते हैं what will be the magnitude of capital Q charge such that whole system will be in equilibrium. तो आइए देखें क्या करना है इसमें हमें इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स यहां पे लग रहा है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा. सपोज इट इज सपोज FO. नाउ इफ होल सिस्टम, सेकेंड पार्ट, व्हेन होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, therefore net force will be equal to 0. And what is net force now? Resultant of FB, FC, FD is equal to this. And children, FO is also acting along the same direction of F. So FO plus that F, this is resultant of all three forces, will be equal to 0. What is FO here? Again they are acting in the same direction. तो इनको क्या करना होगा? इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे. FO will be K capital Q small q upon what is distance from the center to the point? R root 2 is this distance. So half of this R root 2, that will be R divided by root 2 whole square. That is force acting on FO plus K Q square upon R square 1 by 2 plus root 2 will be equal to 0. This implies that take common
This will be 2, under root 2 will be equal to 2. So that will be k small q upon r square can be taken common. Here you have 2 capital Q plus small q. This is 1 by 2 plus root 2. So this is 1 by 2 plus root 2 will be equal to 0. So resultant will be equal to, we have no space, so let us write here. After that you will write here. So this should be equal to 0. Now 2q is equal to minus of, that can be q by 2 1 minus 1 plus 2 root 2, or capital Q will be equal to minus q by 4 1 plus 2 root 2. This is your answer with negative sign. So what will be the magnitude of capital Q? Minus of q by 4 this much, because for the system will be in equilibrium. अब हम इस प्रॉब्लम में देखेंगे कि ये फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में आई जे के फॉर्म में कैसे लिखा जाए. नाउ वी हैव अ सेट ऑफ चार्जेस 1 2 3 4 4 चार्जेस प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन दिस फिगर. सपोज इट साइड इज इक्वल टू 1 मीटर and you have to calculate force acting on 1 microcoulomb charge placed in this diagram. इस पे आपको निकालना है. तो जब भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम हो, आप ऐसा करिए कि किसी एक को ओरिजिन पे रख दीजिए किसी एक्स वाई प्लेन के. तो सपोज हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ये y एक्सिस हमने अज्यूम कर लिया. अब इनकी कोऑर्डिनेट्स भी बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है. यहां पे इसकी वजह से यहां पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इधर लगेगा, बिकॉज ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव. सपोज दिस इज F1 वेक्टर. क्या होगा इसका डायरेक्शन? दैट विल बी k q1 q2. व्हाट इज k हियर? It's 9 into 10 to the power 9. That is 2 into 10 to the power minus 6 into 1 into 10 to the power minus 6 divided by square of 1, that is 1. So F1 will be equal to, it's 18 into 10 to the power minus 3 Newton. Along which side? Along x-axis. So you can write I cap. I cap indicates force acting along x-axis. Now what about this second, this 4 microcoulomb charge? It is acting on upward, say F2. So F2 will be equal to, again by the same way, 9 into 10 to the power 9, 4 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 divided by 1 square, because side is 1. So you will get 36 into 10 to the power minus 3 Newton along y-axis. So along y-axis की जगह हम लिख देंगे J cap. तो ये हो गया F2 और ये हो गया F1. ये x-axis में लग रहा है, ये y-axis में लग रहा है. अब हम इसके लिए लिखेंगे ये 3 माइक्रोकूलम. तो इसके लिए जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा से F3. अब F3 की वैल्यू देखेंगे यहां कैसे लिखा जाएगा. F3 will be equal to, again by the same way, 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2, 3 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 divided by, now this diagonal is root 2. If side is A, then diagonal will be root 2. So square of root 2 is 2. So that will be equal to
13.5 into 10 to the power minus 3 Newton. Now in what direction? Let us see. F3 will be equal to, in what direction it is acting? This is acting along this side. What is that direction? अब या तो आप इसमें cos थीटा और sin थीटा वाला कंसेप्ट लगाइए, बेटर वही होगा, या तो आप कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखिए। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर, इसका वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इसका पोजीशन कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1,1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो क्या आएगा कोऑर्डिनेट, क्या आएगा इसका वेक्टर। अब इस वेक्टर को निकालने के लिए आप लिखे आर कैप। सो आर कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर। नाउ आर कैप इज, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस पोजीशन वेक्टर माइनस दिस पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर होगा प्लस आई प्लस जे और इसका होगा 0, 0। तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए आई प्लस जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है इसका √2। देयरफॉर F3 विल बी इक्वल टू 13.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2। So this is F3 now, because all three F1, F2 and F3 all three are vector quantities. So F will be equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. So F will be equal to F1 is how much? 18 into 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3 is common in all, so you can take common. So it is 18 I plus, what about F2? 36 J plus this, again 10 to the power 3 is same, 13.5 upon √2 into I plus 13.5 upon √2 J. Now it is equal to 18 plus 13.5 by √2 I plus 36 plus 13.5 upon √2 J. This is what resultant force acting on this चार्ज 1 माइक्रोकूलम इन वेक्टर फॉर्म। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो आई जे के फॉर्म में ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, तो ये मान लीजिए एफ एक्स है, ये मान लीजिए एफ वाई है, तो एफ विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप यहां इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। एक मेथड तो ये हो गया जहां पे हम लोग पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेते हैं। दूसरा और क्या तरीका है वो भी समझिए। ये एंगल दिया है 45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है तो डायगोनल विल मेक एन एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो F3 को आप रिजॉल्व कर दीजिए, F3 cos 45, F3 sin 45। तो यहां पे Fx x डायरेक्शन में कंपोनेंट अलग और y डायरेक्शन में कंपोनेंट अलग निकाल लीजिए। तो x एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा, एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 i लिख सकते हैं, i का मतलब x एक्सिस होता है, प्लस ये पहले से था। दूसरा इस F3 का कंपोनेंट जो अलोंग दिस बनेगा, यानी कितना हुआ 13.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइनस 3 cos 45। cos 45 का मतलब क्या होता है 1/√2, तो √2 यहां आ जाएगा, आप इसके साथ लिख सकते हैं i कैप।
सिमिलरली एफ वाई, तो वाई एक्सिस में एक कंपोनेंट, एक पार्ट तो दिया है 36 इंटू 10⁻³ और प्लस दूसरा इसका कंपोनेंट इधर जाएगा f3 sin 45, इनके कंपोनेंट्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस f3 को रिजॉल्व कर रहे हैं ये 45 डिग्री पे, तो इधर का कंपोनेंट क्या आएगा f3 cos 45 और इधर का कंपोनेंट f3 sin 45। तो रिजॉल्व करके हम यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफ वाई विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस क्वांटिटी 13.5 इंटू 10⁻³ sin 45। sin 45 का मतलब अगेन बाई √2 इंटू जे कैप लगा दिया, तो ये निकल गया हमारा एफ एक्स एंड एफ वाई। अब क्या करना है, एफ विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। सो क्या करेंगे, इन्हीं को सॉल्व करके यहां पे रख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली यू विल गेट द सेम रिलेशन एज यू हैव इन द प्रीवियस केस। तो ये f इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे के फॉर्म में जो पहले लिखा था उसी फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। यहां पे ये पूरा पार्ट एफ एक्स है और ये पूरा पार्ट एफ वाई है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, देन f विल बी इक्वल टू √fx² प्लस fy²। आप चाहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, रिजल्टेंट फोर्स, तो जैसे ये है fx और ये है fy, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां बनेगा, मान लीजिए ये बन रहा है अल्फा डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। सो क्या लिखना होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ एक्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो अल्फा कैन बी tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आपने डायरेक्शन भी पता कर लिया कि क्या डायरेक्शन होगा, अल्फा डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम हॉरिजेंटल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, डिस्कस किया है हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं इसमें हमने। यहां पे ये प्रॉब्लम भी स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। क्या है स्टेबिलिटी, आइए देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q ईच, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन दिस फिगर। यू हैव टू कैलकुलेट थीटा। ये दोनों चार्जेस वर्टिकल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। आपको यहां पे थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2r, l एंड चार्ज q एंड मास ऑफ द पार्टिकल m। हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए क्या करना होगा, स्टेबल अगर है तो इसका मतलब यह है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वेट लग रहा है, Fe लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू, इसीलिए एक कॉमन पॉइंट से लटकाने के बाद भी ये सर्टेन डिस्टेंस पे है। एंड द थर्ड फोर्स इज टेंशन एक्टिंग इन द थ्रेड। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे इसका वर्टिकल भी कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल भी बनाएगा थीटा। तो ये कंपोनेंट आ गया t cos थीटा और ऐसे ही इधर का कंपोनेंट आया t sin थीटा। क्या करना है, हमें इन सभी फोर्सेस को इक्वेट करना है, वर्टिकल को वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से। तो t sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fe, एंड व्हाट इज Fe, दैट इज 1/4 pi epsilon naught कैपिटल स्मॉल q is small q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, 2r, तो 4r स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इज t cos थीटा, t cos थीटा विल बैलेंस इट्स वेट mg, तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड करिए इन दोनों को,
टी टी कैंसिल, tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहां पे आप लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r स्क्वायर इंटू एम जी। तो थीटा की वैल्यू यहां इजीली आ गई, tan इनवर्स क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r स्क्वायर एम जी। तो यहां पे ये एंगल का फॉर्मूला हो गया फ्रॉम वर्टिकल। नाउ टुडेज लास्ट प्रॉब्लम, यहां पे दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इनके बीच में स्मॉल क्यू चार्ज रख रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द पोजीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल क्यू चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड पार्ट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। तो फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड अ पोजीशन वेयर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो लेट फ्रॉम दिस चार्ज द डिस्टेंस इज इक्वल टू x। तो डेफिनेटली सेकेंड वाले से क्या डिस्टेंस होगा, इट विल बी 3r माइनस x, ये हो जाएगा। अब इस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनको बनाइए। ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है से F1, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है से F2। नाउ इफ नेट फोर्स इज ऑन दिस विल बी इक्वल टू 0, देन F1 विल बी इक्वल टू F2। F1 कितना है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, और F2 कितना है, K 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 3r माइनस x होल स्क्वायर। टेकिंग, अब यहां पे जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल करिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पे जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करिएगा, ऐसे क्वाड्रेटिक मत बनाइएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के स्क्वायर रूट लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड x विल बी इक्वल टू r, यानी कि यहां से r डिस्टेंस पे वो पोजीशन मिलेगी जहां पे नेट फोर्स हमें 0 मिलेगा इस चार्ज पे। और सेकंड पार्ट में क्या होना है, मान लीजिए हमने एक सिंपल केस लिया क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। कैपिटल क्यू क्यू, एक बीच में चार्ज है स्मॉल क्यू, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो क्या करेगा, अपनी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा। कैसे ऑसिलेट करेगा, इसकी वजह से इधर फोर्स, इसकी वजह से इस पे इधर फोर्स लगेगा। सो नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी F2 माइनस F1। F2 कितना आएगा, K कैपिटल F2 इज ड्यू टू दिस चार्ज, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दैट डिस्टेंस विल बी r माइनस x होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल k, इन दोनों के बीच में कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r प्लस x होल स्क्वायर। टेक कॉमन, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, ये कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये डेल्टा F बिकम्स ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड देयर दैट बिकम्स K कैपिटल Q स्मॉल q माइनस 4rx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे एक कंडीशन है कि इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन x, अगर x की वैल्यू बहुत कम है तो यहां पे x स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे तो r टू द पावर 4 हो जाएगा, एक r कैंसिल, देन देयरफॉर a विल बी इक्वल टू माइनस 4k, k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q स्मॉल q into x divided by r cube. As we know that acceleration is directly proportional to minus of displacement, और यही कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि as a is directly proportional to negative of displacement, so it executes simple harmonic motion. If we compare a is equal to minus omega square x, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, दैट इज इक्वेशन ऑफ SHM। तो एक्स एक्स कैंसिल, ओमेगा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4
K, capital Q, small q upon r cube. And this is omega is 2 pi by t. Therefore, t will be equal to 2 pi by omega. T is 2 pi by omega. So it is 2 pi under root r cube upon 4k capital Q small q. That is expression of time period. And here k is 1 upon 4 pi epsilon naught. So these are few basic problems related to Coulomb's law. मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसी के आसपास मिलेंगे, आप चाहे किसी भी लेवल के क्वेश्चंस करें. बाकी और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करेंगे, वो भी इससे रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इनके कुछ कंसेप्ट आपको वहां पे भी मिलेंगे. थैंक यू.